Morning all. Good morning, sir. Let's start with today's topic. We were discussing was TCP. Any doubt in any of the previous topic like UDP and TCP, whatever I have discussed till now? Let me show you all the things that I have discussed till now. If any doubt, just let me know. Okay. So in TCP, we have discussed that TCP is a kind of connection-oriented protocol. So basically creates a kind of virtual tube between the two TCP. One is the sending TCP, one is the receiving TCP. Okay, and we have discussed some of the services, features, segment, TCP connection. Okay, and today we will discuss how to make the connection, how the data type transfer took place between the two TCP, as well as how the termination took place. Okay, took place of the connection. Also, time permits, we will discuss about the flow control. Okay, so we have gone through these things. Stream delivery, okay, that means stream of byte is basically transfer, but that is only theoretical concept. And reality, it creates a segment that is a collection of bytes, and every byte is numbered. Okay, and every segment is having some number that is known as sequence number, and sequence number is the number of the very first byte that is present in the segment. Okay, so we basically the sending TCP and the receiving TCP maintains some kind of buffers. Okay, in the sending TCP we have three sections. We have like sections containing the bytes that has been sent but not acknowledged. Next section, that is the empty section of the buffers, and next is that is sent, and that is basically waiting for the sending. Okay, those bytes or those chunks that are waiting for the sending. Okay, on the receiving side we have two sections. One is the empty section, okay, and one is the like filled up section. That means the byte has been written or the byte has been transmitted to the receiving TCP, and but not yet consumed by the process, receiving process. Okay, so we have gone through how the sequence number is written, how the acknowledgement number is written. Acknowledgement number, I already told you, it is a kind of cumulative number. Okay, so that means the acknowledgement is already acknowledging. If the acknowledgement number is x plus 1, that means it has last received the byte number x. But it does not means it has received the byte number x starting from 0 to x. It is meaning that whatever the sequence number the sender has synced at the time of connection setup, starting from that till x. Okay, so acknowledgement is cumulative in nature. So I have discussed all these fields. Okay, today when I will discuss the data transfer, I will discuss urgent pointer, urgent flag, as well as the push flag. Okay, and rest I have already discussed. So let's jump to the connection setup. Okay, so in connection establishment, TCP makes use of three-way handshaking. Three-way handshaking क्या होगा? फर्स्ट वे यानी कि थ्री वे हम इसको क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट द सेंडर विल ट्राई टू सेट अप द कनेक्शन, देन द रिसीवर विल acknowledge that, okay, and in the last the sender, real sender, will acknowledge the receiver handshake. That's why it is known as three-way handshake. Okay, so इसमें सबसे पहले जो चीज बनेगी आपकी, whenever any client wants to connect to a particular server,
The client open up in active mode. That means client is opening in active mode. That means initiate किसने किया? Client ने initiate किया. Server normally 99.99% आपको passive mode में मिलेगा. Passive mode या passive open mode में मिलेगा. Meaning that the server is ready to listen. Server wants some client to be connected. That is known as passive mode. Okay? अगर सर्वर अलाउ नहीं करेगा फॉर एनी क्लाइंट टू बी कनेक्टेड, सो आप ट्राई भी करोगे कनेक्ट करने के लिए, यू विल नॉट बी एबल टू बी कनेक्टेड, है ना. अगर आपने बहुत बार देखा होगा सर्वर जब हमारा डाउन हो जाता है, डाउन होने का मतलब क्या है, सर्वर पर रिक्वेस्ट इतनी चली जाती है वो फर्दर किसी न्यू कनेक्शन को अलाउ नहीं करती. ओके, सो एक्टिव ओपन, पैसिव ओपन. एक्टिव ओपन जब इनिशिएटर यानी कि क्लाइंट बेसिकली इनिशिएट करता है फॉर द कनेक्शन. तो कभी भी एक्टिव ओपन किया जाएगा, द क्लाइंट विल एडवर्टाइज इट्स सीक्वेंस नंबर, इनिशियल सीक्वेंस नंबर. यानी कि क्लाइंट इज टेलिंग टू द सर्वर दैट माय डेटा विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर. और इसमें इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सिन सेगमेंट. सिंक्रोनाइज, है ना, वो बता रहा है अपनी चीजों को. दैट इज नोन एज सिन सेगमेंट. और इसमें एक फ्लैग जो हमने सिन फ्लैग पढ़ा था उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. दैट इज एक्टिव. नाउ the server that is waiting for the active open, that is listening at some port number, now it will reply. और reply कैसे करेगा? सबसे पहले server will tell to the client that my data will start from this particular sequence number. तो वो ISN नंबर अपना बताएगा and that is in this case it is basically 15,000. मैंने बताया था ना रे, ये randomly chosen नंबर होते हैं. तो क्लाइंट ने भी randomly चूज किया, सर्वर ने भी randomly चूज किया. As well as now client is acknowledging the sequence number or the SYN segment of the client. तो इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिन. भाई सर्वर सिंक्रोनाइज भी कर रहा है, साथ के साथ एक्नॉलेज भी कर रहा है. और मैंने क्या बताया था आपको? एक्नॉलेजमेंट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर. दैट मींस इट शोज द नंबर और द सीक्वेंस नंबर दैट द रिसीवर इज वेटिंग फॉर. ओके, तो यहां पर रिसीवर किसके लिए, कौन से सीक्वेंस नंबर के लिए वेट कर रहा है? इट इज वेटिंग फॉर सीक्वेंस नंबर 8001. क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस तो आपका कंज्यूम हो गया और यहाँ पर कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है. इट इज एम्प्टी. ओके, सो सीक्वेंस जब मेरा सिन सेगमेंट होता है इट विल कंज्यूम 1 सीक्वेंस नंबर, और सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट आल्सो इट विल आल्सो कंज्यूम 1 सीक्वेंस नंबर. कौन सा सीक्वेंस नंबर कंज्यूम किया? 15,000. नाउ ये 2 वे हो गया अब हैंडशेकिंग. अब थर्ड वे. अब रिसीवर क्या कर, जो क्लाइंट था जिसने इनिशिएट किया था, नाउ इट विल एक्नॉलेज द सिन सेगमेंट ऑफ द सर्वर. अब वो क्या करेगा? बेसिकली सी इफ देयर इज नो डेटा प्रेजेंट इन द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, तो सीधी सी बात है कोई नया सेगमेंट नहीं है. इफ देयर इज नो सेगमेंट, नो न्यू बाइट, सो यहां पर सीक्वेंस नंबर इट विल मेक यूज ऑफ ओल्डर सीक्वेंस नंबर. साथ के साथ इट इज एक्नॉलेजिंग व्हाट? 15,001. दैट मींस नाउ इट इज रेडी टू एक्सेप्ट बाइट नंबर 15,001. तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट. सो जस्ट रिमेंबर द सिन and the SYN plus acknowledgement sender will consume 1 sequence number, but only the acknowledgement segment without any data field will not consume any new sequence number. देखो वो यूज कर रहा है 8,000. So is that clear to all? 3-way handshaking कैसे काम कर रही है? Is that clear? सर ये लास्ट वाला एक बार बताइए. कौन सा? एक्नॉलेजमेंट और सिन प्लस एसीके? एक्नॉलेजमेंट वाला. एक्नॉलेजमेंट बेटा इसमें क्या होता है, क्लाइंट को जस्ट एक्नॉलेज करना है. भाई वो डेटा तो सेंड नहीं कर रहा. मान लो इसको एक तरह से ऐसे समझो, देयर आर 2 पर्सन.
वो आपस में बात करना चाहते हैं। आप किसी को हाय कहोगे, दूसरा हेलो कहेगा। फिर या तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब दो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो नॉर्मली आफ्टर सेइंग हाय एंड हेलो वी स्टार्ट टॉकिंग। बट इन केस ऑफ मशीन, सीधी सी बात है, ये काम हम क्यों कर रहे हैं, है ना, 3 बार हम क्यों कर रहे हैं भाई, यहां से डेटा गया, हो सकता है ये ड्रॉप हो जाए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं ना यहाँ पर। हो सकता है ये भी ड्रॉप हो सकता है बीच में से, है ना, लॉस्ट हो सकता है। तो ये भी क्या कर रहा है, इस बार कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इट इज जस्ट एक्नॉलेजिंग द सीक्वेंस नंबर 15,000। तो मैंने क्या बताया, हमेशा ये क्या, क्यूमुलेटिव, दैट मीन्स व्हाट सीक्वेंस नंबर द रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग। कि आपने मुझे तो ये बता दिया, बट आई एम वेटिंग फॉर व्हाट, 15,000। ओके, ओके सर। सो सिन सर सेगमेंट थर्ड कौन सा बेटा, यस, थर्ड स्टेप में सीक्वेंस नंबर सेम क्यों है? सीक्वेंस नंबर कभी भी एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट होगा, है ना, और उसमें डेटा नहीं होगा, तो उसमें केवल और केवल यू कैन नॉट कंज्यूम वन मोर सीक्वेंस नंबर, उसमें पुराने सीक्वेंस नंबर से ही काम चल जाता है। क्योंकि भाई ऑलरेडी आप ये समझो, यहां से क्लाइंट तो बता चुका है कि मेरा डेटा कहां से स्टार्ट होगा, 8,000 से। यहां से सर्वर बता चुका है मेरा डेटा कहां से स्टार्ट होगा। तो यहां पर दोबारा से जब वो डेटा ही सेंड नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट एक्नॉलेजिंग, कंट्रोल डेटा है ये केवल, या ये एक तरह का कंट्रोल सेगमेंट है। तो केवल कंट्रोल सेगमेंट के अंदर जब डेटा सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई डेटा फील्ड नहीं है, जब डेटा फील्ड प्रेजेंट नहीं है, सीधी सी बात है, तो मैं यहाँ पर 8,001 मेंशन नहीं कर सकता। द रीजन इज, जब तक यहाँ पर भाई सीक्वेंस नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ वेरी फर्स्ट बाइट प्रेजेंट इन द सेगमेंट, और जब डेटा ही प्रेजेंट नहीं है, सीधी सी बात है, तो आप कोई भी सीक्वेंस नंबर यानी कि न्यू सीक्वेंस नंबर मेंशन नहीं कर सकते। सो यू हैव टू मेक यूज ऑफ ओल्डर सीक्वेंस नंबर। ओके आई बात समझ में? यस। ओके, एक तरह से इसको ऐसे समझो, एक ने हाय कहा, दूसरे ने हाय कहा, फिर अगेन फर्स्ट पर्सन ने कि उसका हाय मुझे रिसीव हुआ, तो अगेन वो हाय बोलता है, बस और कुछ नहीं। ओके, इसको ऐसे समझो, राइट। ओके, सो सिन सेगमेंट कैन नॉट कैरी डाटा, डेटा कैरी कभी नहीं करता, बट इट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर। ओके, सेम विद द सिन प्लस एसी के सेगमेंट, इट कैन नॉट कैरी डेटा, ये डेटा कैरी नहीं करता, ये केवल कंट्रोल सेगमेंट होते हैं दोनों, बट इट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर। कौन सा था, 15,000 फ्रॉम द सर्वर, वहां क्या था, 8,000। एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट इफ कैरी नो डेटा, हो सकता है डेटा प्रेजेंट हो, बट इन केस ऑफ इफ देर इज नो डेटा, इट विल कंज्यूम नो सीक्वेंस नंबर, दैट इज रूल। ओके, अब कनेक्शन तो सेटअप हो गया 3-वे हैंडशेकिंग से, अब हमें क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है। तो डेटा ट्रांसफर में हम क्या मान के चल रहे हैं, द क्लाइंट वांट्स टू सेंड 2,000 bytes of data and each segment is having 1,000 bytes. ओके, सर्वर भी क्लाइंट को डेटा सेंड करता है, बट सर्वर जो डेटा सेंड कर रहा है या सेगमेंट सेंड कर रहा है, द डेटा साइज इन द सर्वर सेगमेंट इज 2,000 bytes, और यहां पर क्लाइंट की साइड से कितना जा रहा है, 1,000 का। तो चेक करो जरा, देखो स्टार्टिंग में उसने क्या बताया था, क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 8,000। सर्वर ने क्या किया था, उसको एक्नॉलेज किया था, नाउ इट इज रेडी टू एक्सेप्ट बाइट नंबर 8,001। तो इसने कौन सा सेंड कर रहा है, चेक करो, 8,001। कौन सी बाइट नंबर सेंड कर रहा है, 8,001 को। मैंने क्या बताया, इस सेगमेंट का साइज क्या है, 1,000 का, यानी कि 8,001 से लेके 9,000 तक डेटा होता है इसके अंदर। ओके, अभी मैं पी की वैल्यू बताऊंगा, पी का मतलब क्या है। ओके, नाउ साथ के साथ इसके अंदर ये किसको एक्नॉलेज कर रहा है, 15,001 को। इसका मतलब क्या हुआ, द
the client is telling to the server that I'm ready for byte number 15001 from your side. फिर अगला जो भी सेगमेंट क्लाइंट सेंड कर रहा है उसका सीक्वेंस नंबर चेक करो भाई, उसने 9000 तक सेंड किया था, अब कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 9001 से। तो 9001 से लेके, क्योंकि एक सेगमेंट का साइज क्या है 1000, 9001 से लेके 10000। अगेन ये फिर से क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग टू द सर्वर दैट आई एम वेटिंग फॉर बाइट नंबर 15001 फ्रॉम योर साइड। ओके, अब ये दोनों चीजें जब सर्वर के पास गई, सर्वर को वेल रिसीव हो गई। अब सर्वर किसके लिए रेडी होना चाहिए? भाई कहां तक इसको डेटा मिल गया? 10000 तक। तो ये अब ये क्या एक्नॉलेज करेगा? 10001 को, है ना भाई? वो तो उसके लिए वेट कर रहा है क्योंकि वो उसको वेल रिसीव्ड हुआ। परफेक्टली फाइन। अब यहां पर सीक्वेंस नंबर वो किसके लिए वेट कर रहा था? 15001। मैंने क्या बताया? जो सर्वर साइड से सेगमेंट जाएगा टू द क्लाइंट, उसका साइज कितना है? 2000 बाइट्स। और 15001 से लेके कहां तक जाएगा बच्चे? ये 17000 तक। और ये क्या फील्ड है? केवल यहां पर एक्नॉलेजमेंट फील्ड को एक्टिव किया गया, यानी कि 1 किया गया, क्योंकि ये एक्नॉलेज भी तो कर रहा है साथ के साथ। ये डेटा फील्ड के साथ साथ क्या है? एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि ये एक्नॉलेज क्या कर रहा है? 10001 को। अब इसके बाद आपका जो सीक्वेंस नंबर है, जो आपका बेसिकली क्लाइंट है, क्लाइंट इज नॉट सेंडिंग एनी न्यू डेटा। इसमें केवल क्लाइंट अपनी विंडो के बारे में बता रहा है। मैंने एक फील्ड बताया था आपको टीसीपी के हेडर में, दैट इज रिसीवर विंडो। तो इस वाले पैकेट में थर्ड सेगमेंट में क्लाइंट क्या कर रहा है? क्लाइंट इज टेलिंग टू द सर्वर अबाउट इट्स विंडो, यानी कि उसके पास बफर का साइज क्या मेंटेन्ड है। तो इसके अंदर आप देखिए सीक्वेंस नंबर क्या है? पुराना वाला यूज कर रहा है 10000, क्योंकि ये किसके लिए कह रहा था? सर्वर वाज वेटिंग फॉर 10001, बट इट इज टेलिंग इट इज 10000। इसका मतलब इसके अंदर कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है, पहली चीज। साथ के साथ इट इज एक्नॉलेजिंग व्हाट? 17001, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि आपके क्लाइंट को कौन कौन सी बाइट, लास्ट बाइट कौन सी रिसीव हो गई? 17001। तो अब ये किसके लिए वेट करेगा? 17001 के लिए। बट दिस सेगमेंट इज बेसिकली मेंट फॉर व्हाट? एक तो एक्नॉलेजमेंट के लिए है ये, दूसरा जो आपका क्लाइंट है दैट इज एडवर्टाइजिंग इट्स विंडो। आई बात समझ में? यहां पर, यहां तक अभी मैंने पुश फ्लैग का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यहां तक आई बात समझ में? डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है? सर जी सर, जो मतलब ये जो डेटा है सर, ये मतलब क्यूमुलेटिव वो भेज रहा है ना सर, हाँ, एक्नॉलेजमेंट। क्यूमुलेटिव, यस यस, क्यूमुलेटिव। क्योंकि सर मतलब एक्नॉलेजमेंट 10001 मतलब मंगा यस, रहा है। लेकिन लास्ट वाले में चेक करो, जब कोई न्यू डेटा नहीं है तो सीक्वेंस नंबर पुराना यूज किया, क्योंकि वो Yes, 10000 वाली तो भेज चुका था, लेकिन फिर भी उसने सीक्वेंस नंबर क्या लिखा? जब न्यू डेटा नहीं है तो इट इज यूजिंग ओल्डर सीक्वेंस नंबर, ओल्डर बाइट नंबर। आई बात समझ में? तो डेटा तो दोनों तरफ से ही हो रहा है ना ट्रांसफर। डेटा दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन ये लास्ट वाले का मैं कह रहा हूँ, लास्ट वाले में डेटा प्रेजेंट नहीं है। ओके। क्यों? रीजन क्या है? ये सीक्वेंस नंबर देखो क्या यूज कर रहा है? 10000, बट सर्वर ने किसके लिए बोला था? 10001 के लिए। इसका मतलब देयर इज नो न्यू डेटा प्रेजेंट इन द दिस सेगमेंट। ओके, अब मैं बात करूंगा पुश फ्लैग, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। देखो पुश फ्लैग क्या है बेसिकली। सपोज एनीकास्ट यूज करते हैं आप लोग? एनीकास्ट एक आपकी सॉफ्टवेयर है, एनीवन? सपोज मैं अपने कीबोर्ड पर टाइप करता हूं, वो आपकी स्क्रीन पर शो होता है या नहीं? मैं आपके सिस्टम का कंट्रोल ले सकता हूं जूम के थ्रू भी। आई कैन टीवी में टेक रिमोट कंट्रोल। हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्टली मैं जूम के थ्रू भी आपके सिस्टम का कंट्रोल ले सकता हूं। तो होता क्या है बच्चे, मैंने क्या बताया? सेंडर टीसीपी और रिसीवर टीसीपी दोनों क्या मेंटेन करते हैं? बफर्स। सेंडर टीसीपी, रिसीवर टीसीपी,
जब तक डेटा को सेंड नहीं करते जब तक कि बफर फुल नहीं, यानी कि विंडो, एक विंडो मेंटेन होती है ना, जब तक वो विंडो फिल नहीं होगी, है ना। एक तरह से मैं मान के चलता हूँ, मेरे सेगमेंट के अंदर अगर हम मान के चलते हैं कि 5 बाइट आ सकती है, आई कैन इंक्लूड 5 बाइट्स। ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है बट स्टिल एबल टू कनेक्ट टू इट, कनेक्ट टू द कंसेप्ट। ओके, मैं मान के चल रहा हूं जो सेंडर टीसीपी है वो एक सेगमेंट जो क्रिएट करेगा, एक सेगमेंट के अंदर कितनी बाइट आ सकती है? 5। तो जो आपका प्रोसेस है, यहाँ पर एक प्रोसेस ही तो रन कर रही होगी एप्लीकेशन लेवल पर, वो क्या करती है? एक एक बाइट जनरेट करती है और वो एक एक बाइट एक सेगमेंट के अंदर फिल होगी। मैं मान के चल रहा हूं सेगमेंट का साइज क्या है? 5 बाइट्स का। ओके, तो जब तक ये सेगमेंट कंप्लीटली फिल नहीं होगा इट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड। यस और नो? क्योंकि एक सेगमेंट को ही तो ट्रांसमिट करते हैं। यस सर। ओके, जब हम जब तक ये एंटायर, आप ये सोचो आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट को, अब ऐसा तो नहीं होगा, मान लीजिए आपने ऑर्डर किया कोई पेन ऑर्डर किया, ऐसा तो नहीं होगा फ्लिपकार्ट जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ ओके आपकी डिलीवरी के लिए तुरंत वो एक ट्रक मंगवाएगा, है ना, और आपके पूरे जो पेन है उस एक ट्रक में रखा हुआ जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा। जब तक जितने भी एक सेम डे में, अगर हम, मैं मान के चल रहा हूँ एक डे में जितने भी ऑर्डर आए, अभी मैं लोकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं मान के चलो जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं वो एक घर से ही आ रहे हैं, तो जब तक एक दिन में या एक लोकेलिटी से आ रहे हैं जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं, जब तक वो ट्रक कंप्लीटली फुल नहीं हो जाता, जब तक क्या आपका डिलीवरी स्टार्ट होगी, शिपिंग स्टार्ट होगी? नो सर। नहीं होगी। क्यों? वाई? रीजन? क्या वो वेस्ट नहीं करेंगे ना अपना स्पेस? एग्जैक्टली। तो हम क्या, या सेंडर टीसीपी क्या करता है, जब तक सेगमेंट अपनी फुल कैपेसिटी से फिल नहीं होता इट विल नॉट सेंड दैट सेगमेंट। वो वेट करता है कि जब तक जो भी आपकी प्रोसेस डेटा जनरेट कर रही है, जब तक वो डेटा जो भी जनरेट होगा, जिस रेट से भी जनरेट होगा कि एक मेरा सेगमेंट भरे तब मैं उसको ट्रांसमिट करूंगा, फिर नेक्स्ट सेगमेंट कंप्लीटली फिल होगा तब ट्रांसमिट किया जाएगा। ऐसे नहीं एक एक बाइट। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है वी वांट डेटा टू बी अर्जेंटली सेंट। यस और नो? जैसे कि अब व्हाट्सएप पर अगर यही कंसेप्ट मैं लगा देता हूं, मैं एक हम लोग एक एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, मैं यहां से अपने कीबोर्ड को प्रेस कर रहा हूं और जो भी कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। अरे ये बात समझ में? वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं एक बाइट, एक कैरेक्टर एक बाइट का, अगर मैंने बी प्रेस किया तो अगर हम ये मान के चल रहा है सेंडर टीसीपी जब तक 5 बाइट फुल नहीं होगी मैं नहीं सेंड करूंगा, आई विल नॉट सेंड। तो मैंने कैरेक्टर प्रेस किया था बी, क्या ये मुझे शो होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए? आप बताओ, या फिर वेट करें जब तक 5 कैरेक्टर ना आ जाए? नहीं सर, सो होना चाहिए। तो होना चाहिए। तो होता क्या है, कभी भी सम एप्लीकेशन वांट्स डेटा टू बी अर्जेंटली सेंट। वो नहीं चाहते कि आपकी सेंडिंग टीसीपी जब तक वेट ना करे कि जब तक ये पर्टिकुलर सेगमेंट फुल ना हो। एक कैरेक्टर आया या एक बाइट आई, इट विल बी ट्रांसमिटेड इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर बफर टू बी फुल और विदाउट वेटिंग फॉर सेगमेंट टू बी फुल। और आपका रिसीवर टीसीपी भी क्या काम करेगा भाई, रिसीवर पर भी क्या होते हैं, बफर फुल होते हैं, एक एक बाइट जाती है। जब तक पूरा बफर नहीं बढ़ता रिसीवर भी क्या करता है, आगे प्रोसेस करके सेंड नहीं करता। रिसीवर भी कब तक वेट करेगा, जब तक कि ये कंप्लीटली विंडो फुल नहीं हो जाती, तभी ये आगे ट्रांसमिट करेगा किसको, एप्लीकेशन लेयर को।
तो कभी भी अर्जेंट फ्लैग अगर ऑन हुआ या 1 हुआ, इसका मतलब क्या होगा, द डेटा दैट इज प्रेजेंट इन द सेगमेंट इट्स अर्जेंट डेटा, इट वांट्स अर्जेंट डिलीवरी, जो कि कुछ सर्विसेज आपको जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करते हैं सेम डे की डिलीवरी, बट उसके लिए वो क्या लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस। ओके, तो मान लो अगर आपने एक पेन भी मंगाया होगा और आप चाह रहे हो सेम डे विद इन 2 आवर्स डिलीवरी, तो आपके लिए एक्सप्रेस डिलीवरी होगी, बट आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब वो चाहे स्कूटर से आए, बाइक से आए, प्लेन से आए, you have to pay for that। यहां पर भी if you are activating the urgent field, तो चाहे 1 बाइट सेंड होगी, the sender TCP will not wait for the window to be full or for the segment to be full। तो 1 बाइट होगी तो 1 बाइट will be sent। Similarly, the receiver window or the receiver TCP will not wait for the विंडो टू बी फुल, वो एक बाइट होगी, 1 बाइट को अपनी एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि हम की स्ट्रोक कर रहे हैं, तो मैं अगर एम बी टाइप करूंगा या बी टाइप करूंगा, वो मुझे तुरंत रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये क्या है, मेरा अर्जेंट डेटा। आई बात समझ में? जैसे कि हम चैटिंग करते हैं, आपने एक कैरेक्टर प्रेस किया, आपको दिख जाती है, आपके फ्रेंड को तुरंत सेंड हो जाता है, वेट थोड़ी कर रहा है आपका सेंडिंग टीसीपी। नो, कि जब तक मुझे एक लाइन पूरी नहीं मिलेगी आई विल वेट, नो, ऐसा नहीं होगा। तो डेटा इज अर्जेंटली सेंड। तो रियल टाइम डेटा में हम अर्जेंट सेंडिंग चाहते हैं। ओके, सो इज दैट क्लियर? पुश का मतलब क्या है? पुश का मतलब क्या है? अगर पुश फ्लैग 1 होगा, डेटा विल बी इमीडिएटली सेंट without waiting for the segment to be full। ओके, ऐसे ही अर्जेंट है आपका। अब अर्जेंट की कहानी सुनिए, देखिए, मान लीजिए अगेन एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास सेंडिंग टीसीपी में जो सेगमेंट साइड है वो है कितने बाइट का, अगेन 5 बाइट का, राइट। मान लो द सेंडर प्रोसेस है ना, डेटा जनरेट करता है बेसिकली। यहाँ पर एक एप्लीकेशन लेयर पर कोई प्रोसेस रन हो रही है जिसका काम क्या है, डेटा को जनरेट करना। और यहाँ जो रिसीवर प्रोसेस है P2 में मान के चल रहा हूँ, उसका काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करना। आई बात समझ में? P1 प्रोसेस एट द सेंडर साइड, उसका काम क्या है, जस्ट डेटा को जनरेट करना। और किसको प्रोवाइड करना, टू द रिसीवर फॉर द प्रोसेसिंग। मैं मान के चल रहा हूं, मान लो यहां पर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, सॉर्टिंग का प्रोग्राम है ना, और यहां पर क्या हो रहा है, वो सॉर्टिंग के लिए जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो यहां पर जनरेट हो रहा है। हुआ क्या, जो सॉर्टिंग कर रहा है वो केवल इंटीजर नंबर की कर रहा है, इनकी इंटीजर नंबर की। अब यहां जो प्रोसेस P1 है, सपोज उसने, मान के चल रहा हूं मैं, सपोज 5 डेटा जो जनरेट किए उसमें इंटीजर भी थे, फ्लोटिंग नंबर भी थे और कुछ स्ट्रिंग भी थे। ओके, इंटीजर भी जनरेट हो गया गलती से, यानी हाउ, और फ्लोटिंग भी जनरेट हो गया और कैरेक्टर नंबर भी जनरेट हो गए। बट यहां जो प्रोसेस रन हो रही है वो कैसे डेटा को प्रोसेस करती है, केवल इंटीजर डेटा को। सारा डेटा जनरेट करने के बाद प्रोसेस P1 को ये पता लगा द एवरीथिंग इज मेस्ड अप, और फिर वो क्या करता है, भाई हम प्रोसेस को किल करने के लिए क्या करते हैं, अबॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल C। ओके, सो साथ के साथ जब उसको पता लगा कि आगे वाला डेटा सारा गड़बड़ है, तो उसने क्या किया, अबॉर्ट करने के लिए कंट्रोल C प्रेस कर दिया। तो क्या होना चाहिए, क्या सारा डेटा पहुंचने के बाद कंट्रोल C पहुंचे, आप बताओ? क्योंकि अगर सारा डेटा P2 को रिसीव हो गया तो P2 उस पर कैलकुलेशन करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। बट हमारे लिए अर्जेंट क्या है, यहां पर जो भी डेटा जनरेट हुआ और P2 ने रिसीव भी किया, उस सब चीज को अबॉर्ट करना है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेटा क्या है इन सब में से,
कंट्रोल सी। तो ये अर्जेंट डेटा है। हम क्या चाहते हैं फिर, इस पूरे सेगमेंट में अर्जेंट कहां पर था, कंट्रोल सी कहां पर था, सबसे लास्ट में। अब क्या करेगा सेंडिंग टीसीपी, अर्जेंट डेटा को सबसे पहले लगा देगा, और ये कितनी भी लेंथ का हो सकता है ना। वैसे अभी मैंने 1 बाइट दिखाई है, इट कुड बी ए नंबर ऑफ बाइट्स। तो क्या करता है, सबसे पहले वो सॉर्टिंग करता है, या एक तरह से फ्रेगमेंटेशन या डीफ्रैग करता है। अर्जेंट डेटा एक साइड, नॉर्मल डेटा एक साइड। अर्जेंट डेटा को, है ना, फर्स्ट हाफ में लगाया जाएगा, या है ना इनिशियल पोजीशंस पर लगाया जाएगा, क्योंकि अर्जेंट डेटा पहले पहुंचेगा, भाई स्ट्रीम ऑफ बाइट है। अर्जेंट डेटा जब पहले जाएगा, दैट मींस दैट इज इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेस रनिंग एट द रिसीवर, और वो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन उसको क्या मिलेगा, अबॉर्ट करना, यानी कि आगे वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगी। आई बात समझ में? क्लियर? अर्जेंट डेटा का क्या मतलब है? सर तो मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो P1 प्रोसेस ने जो डेटा जनरेट किया, उसने मान के चलिए जो वैल्यूज जनरेट की, 5000 वैल्यूज जनरेट कर दी। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहां जो आपका P2 प्रोसेस है वो केवल इंटीजर वैल्यूज को सॉर्ट कर रहा है। बट P1 ने जो डेटा जनरेट किया, दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑल डेटा टाइप्स। अब उसको बाद में आइडिया लगा, जो P1 प्रोसेस है, ओके एवरीथिंग इज मैच्ड अप, तो क्या करोगे आप, सीधी सी बात, प्रोग्रामर क्या करेगा, कंट्रोल सी, नहीं आगे नहीं बढ़ना। लेकिन आप ये देखोगे, भाई 5000 वैल्यूज जनरेट होगी तो वो पहले लगेगी सेगमेंट में, और जो कंट्रोल सी वाला डेटा है ना, कंट्रोल सी है, वो कहां पर लगेगा, सबसे बाद में लगेगा। यानी कि कंट्रोल सी, आप डेटा सेंड करोगे, वो तो पाइप के थ्रू ही तो जा रहा है एक तरह से, तो यानी कि 5000 वैल्यूज तो सारी चली जाएंगी इसके पास, और ये प्रोसेस भी स्टार्टिंग कर देगा, और कंट्रोल सी आपका सबसे एंड में जाएगा। देयर इज नो बेनिफिट। हम क्या चाहते हैं, जो मेरा अर्जेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, वो पहले जाए। तो कंट्रोल सी क्या करता है, सेंडिंग टीसीपी जितना भी अर्जेंट डेटा होगा उसको इनिशियल्स या स्टार्टिंग में लगा देगा, स्टार्टिंग ऑफ द सेगमेंट, और बाकी नॉर्मल डेटा को आफ्टर द एंडिंग ऑफ द अर्जेंट डेटा लगा देगा। जिससे जब भी अर्जेंट डेटा रिसीव होगा, यानी कि इस केस में जैसे कंट्रोल सी रिसीव हुआ, कंट्रोल सी में पहले ही इसने प्रोसेस P2 को बता दिया आपको अबॉर्ट करना है, आगे कुछ करना है। तो सेगमेंट के अंदर नॉर्मल डेटा होगा, उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। अब अर्जेंट फील्ड मैंने आपको बताया था, टीसीपी हेडर में एक और होता है अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर मुझे बताता है द लेंथ ऑफ द अर्जेंट डेटा। क्या बताता है, द लेंथ ऑफ द अर्जेंट डेटा। मैंने बताया ना, अर्जेंट डेटा को स्टार्टिंग में लगा देगा, लेकिन कहां तक अर्जेंट डेटा मेरा कहां एंडिंग हो रहा है, कैसे पता चलेगा, तो वो एक पॉइंटर का यूज करता है, जो मुझे क्या बताएगा, द लेंथ ऑफ द अर्जेंट डेटा प्रेजेंट इन द सेगमेंट। ओके, और उसके बाद उस पॉइंटर के बाद या उस लोकेशन के बाद जितना डेटा है वो कौन सा डेटा होगा, नॉर्मल डेटा। हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो अब। सर हाँ, सर आपने मतलब सर ये पुश और अर्जेंट एक ही चीज है ना सर? नहीं, पुश अलग है, अर्जेंट अलग है। सर पुश उसमें अलग है। उसमें तो आपने ये बताया ना कि पुश मतलब मैं बता रहा हूं मैं, जैसे कि एक तरह से समझो, डेटा पुश कर, यानी कि अर्जेंट डेटा, जैसे कि मैंने की स्ट्रोक प्रेस किया है ना, कोई की प्रेस की, मैं चाहता हूं वो की मेरी तुरंत शो हो जाए। सेंडिंग टीसीपी वेट ना करे कि आपका पूरी की पूरी विंडो फुल हो तभी सेंड किया जाए। अदरवाइज अगर ऐसे होने लगा तो बच्चे आप समझो, मान लो जब तक पूरा वर्ड एक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो आपको रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा आपकी स्क्रीन पर। एक तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हम एक की भी प्रेस करते हैं, वो हमें तुरंत शो हो जाती है, जिसका मतलब सेंडिंग टीसीपी इज नॉट वेटिंग फॉर द सेगमेंट टू बी फुल। इंस्टेंट डिलीवरी, सीधी सी बात। पुश क्या बोलता है, इंस्टेंट डिलीवरी। और अर्जेंट डेटा क्या बोलता है, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट डेटा है जो मेरा पहले जाना चाहिए। ये डिफरेंस है दोनों।
आई बात समझ में? यस सर। तो डेटा कनेक्शन हो गया और डेटा ट्रांसफर हो गया। अब करते हैं हम टर्मिनेशन। डेटा को टर्मिनेट कैसे करते हैं? टर्मिनेशन भी 3 वे हैंडशेकिंग। वैसे 2 तरीके हैं, एक तो हाफ क्लोज और फुल क्लोज। पहले हम फुल क्लोज की बात करेंगे। फुल क्लोज में क्या होगा? सीधी सी बात है, जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होगा टर्मिनेशन करना पड़ेगा। टर्मिनेशन करने का मतलब है रिसोर्स वुड बी फ्रीड अप। जो भी रिसोर्स क्रिएट किए गए होंगे एट द सर्वर साइड एज वेल एज एट द क्लाइंट साइड, दोनों को फ्री किया जाएगा। ओके, सो एक्टिव क्लोज कौन स्टार्ट कर रहा है इस बार? क्लाइंट। क्लाइंट अपना एक सीक्वेंस नंबर बता रहा है और इट इज एक्नॉलेजिंग सम सीक्वेंस नंबर y, है ना? तो हम मान के चल रहे हैं कि जब तक डेटा ट्रांसफर हुआ होगा तो यहां से एक सीक्वेंस नंबर x है और सीक्वेंस नंबर y है। साथ के साथ इसने एक फ्लैग को इनेबल कर दिया, दैट इज नोन एज फिनिश। फिनिश का मतलब टर्मिनेट द कनेक्शन। अब ये इंफॉर्मेशन किसके पास गई? सर्वर के पास। सर्वर इज रेडी फॉर द पैसिव क्लोज, यानी कि ये हमेशा रेडी होता है टू लिसन द क्लोजिंग। ओके, अब सर्वर चेक करो, एक्नॉलेजमेंट यहां पर वैल्यू क्या थी? y, है ना? यहां एक्नॉलेज, इसका मतलब क्या था? क्लाइंट इज वेटिंग फॉर सीक्वेंस नंबर y। तो यहां इसने कौन सा सीक्वेंस नंबर भेजा? y भेजा। और ये किसको एक्नॉलेज कर रहा है? सीक्वेंस नंबर x को एक्नॉलेज कर रहा है। और इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। जैसे कि वहां पर सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट बोलते थे, यहां पर हम क्या बोलते हैं? फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। अब जो लास्ट होगा फिर से 3 वे है, तो एक्नॉलेज करेगा ये उसको। सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया? अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर हम न्यू सीक्वेंस नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चेक करो, ये ओल्डर सीक्वेंस नंबर ले रहा है। साथ के साथ ये किसको एक्नॉलेज कर रहा है? y को। तो दैट्स व्हाई इट इज y+1। और यहाँ पर एक्टिव क्या है? आपका एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो इज दैट क्लियर? 3 वे हैंडशेक। यहाँ पर x और y इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें नहीं पता डेटा ट्रांसमिशन में कौन कौन से सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होते हैं, तो इसलिए दे हैव मेंशन्ड x कि यहाँ पर क्लोज करने से पहले ये अपने सीक्वेंस नंबर को क्या बता रहा है? y, एंड इट इज वेटिंग फॉर सीक्वेंस नंबर y। ओके, यहाँ पर सीक्वेंस नंबर y किसी AC के लिए वेट कर रहा था, y होगा। और ये किसको एक्नॉलेज करेगा? x को। तो ये AC के प्लस फिनिश होगा। ये भी टर्मिनेट करना चाहता है, अब ये इसको एक्नॉलेज करना। ओके, तो फिनिश सेगमेंट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर इफ इट डज नॉट कैरी एनी डेटा। पहली चीज, फिन प्लस AC के कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर कर रहा था, कंज्यूम x को, वो कर रहा था y को। ओके, इफ इट डज नॉट कैरी एनी डेटा। और अगेन AC के किसी भी सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम नहीं करना। लास्ट इज हाफ क्लोज। हाफ क्लोज का मतलब क्या है? नाउ कि जो, क्योंकि ये कैसा डेटा है या कनेक्शन कैसा? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है? डेटा कैन बी सेंट एज वेल एज रिसीव। तो कनेक्ट क्लाइंट साइड से भी फुल डुप्लेक्स है और आपका सर्वर साइड से भी फुल डुप्लेक्स है। मान लो क्लाइंट क्या चाहता है, जब वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द कनेक्शन, वो डेटा सेंड नहीं करेगा बट इट कैन रिसीव द डेटा। इट विल नॉट सेंड द डेटा बट इट कैन रिसीव द डेटा। जैसे कि आपके फोन में बैलेंस खत्म हो गया, ओके, आप कॉल नहीं कर सकते बट यू कैन रिसीव द। ओके, सो यहां पर भी एक्टिव क्लोज कभी भी क्लाइंट करेगा आफ्टर सेंडिंग द एक्टिव क्लोज और द फिनिश सेगमेंट, और उसको एक्नॉलेज होने के बाद चेक करो द डेटाग्राम सेंड फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट केवल डेटा को रिसीव करेगा, इट कैन नॉट सेंड द डेटा। इसको हम बोलते हैं हाफ क्लोज, क्योंकि एक डायरेक्शन में क्लोज हुआ है फ्रॉम द क्लाइंट
टू द सर्वर, बट फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ। ओके, तो इसको चेक करते हैं। सी अगेन सीक्वेंस नंबर क्या है, फिनिश करने के लिए इसने चूज किया क्या, x, और ये इट इज वेटिंग फॉर सीक्वेंस नंबर y, है ना। फिनिश इसने एक्टिव कर दिया, ये इंफॉर्मेशन है इसके पास। अब ये चेक करो जो सर्वर है वो सीक्वेंस नंबर क्या सेंड कर रहा है, y-1। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? और एक्नॉलेज कर रहा है x+1। डाटा नहीं है सर, इस वजह से y-1। y-1 का मतलब ये है कि ये किसके लिए वेट कर रहा था, y। ओके, बट इसने ओल्डर सीक्वेंस नंबर भेजा, यानी कि सीक्वेंस नंबर कौन सा भेजा, जो इसको ऑलरेडी मिल चुका है। भाई y-1 इसको मिल गया था ना पहले क्लाइंट को, क्योंकि ये किसके लिए वेट कर रहा है, y के। तो ये ओल्डर सीक्वेंस नंबर को यूज करेगा, और एक्नॉलेज किसको कर रहा है, x+1, दैट कि मुझे आपका टर्मिनेट करने का सेगमेंट मिल चुका है, और उसको एक्नॉलेज कर रहा है। ओके, सो दैट इज एक्नॉलेजमेंट। अब ये किस सिचुएशन में होता है, सपोज अगेन क्लाइंट सर्वर वाला एग्जांपल लेंगे। क्लाइंट जो है, जो भी प्रोसेस रन हो रही है क्लाइंट साइड पर, वो डेटा जनरेट करती है और प्रोसेसिंग के लिए किसको सेंड करती है, सर्वर। तो क्लाइंट साइड ने क्या किया, डेटा एंटायर डेटा जनरेट करके किसको बता दिया, सर्वर। तो आप मुझे बताओ, जो भी क्लाइंट साइड पर डेटा जनरेट हो गया और सर्वर को दे दिया फॉर द प्रोसेसिंग, अब क्लाइंट तो केवल रिजल्ट के लिए वेट करेगा ना, क्योंकि आगे उसको डेटा सेंड नहीं करना। तो आगे डेटा सेंड नहीं करना, तो वो क्या करता है, हाफ क्लोज, यानी कि वो अपनी सेंडिंग को तो ब्लॉक कर देगा, बट इट विल रिसीव द डेटा फ्रॉम द सर्वर, इट विल रिसीव ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द सर्वर। इसको हम हाफ क्लोज बोलते हैं। ओके, तो यहां पर y-1 कोई न्यू डेटा नहीं है, दैट इज द ओल्डर डेटा, ये केवल एक्नॉलेजमेंट है। देखो, एक्नॉलेजमेंट फील्ड में कभी भी सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होता, तो तभी तो यहां पर सीक्वेंस नंबर कौन सा यूज किया इसने, y-1। जब भी सिंगल एक्नॉलेजमेंट होगा तो हमेशा कौन सा डेटा या कौन सा सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होगा, ओल्डर सीक्वेंस नंबर, इसलिए इसने क्या यूज किया, y-1। अब डेटा सेगमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, है ना, फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट चला जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आएंगे भी, है ना, एक्नॉलेजमेंट आ सकता है, डेटा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, है ना, कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैन कम। ओके, अब ये क्या करेगा, पैसिव क्लोज, कि सारा डेटा सर्वर ने क्लाइंट को सेंड कर दिया है, अब ये क्लोज करेगा अपनी साइड से। नाउ इट विल सेंड इस सीक्वेंस नंबर z, है ना भाई, कंज्यूम करते करते काम कौन से सीक्वेंस नंबर पर आ गया, वो z, और किसको एक्नॉलेज कर रहा है, x+1 को, क्योंकि x+1 फिर से क्यों लिखा है, कोई बताएगा, एनीवन, व्हाई इट इज रिटन x+1? इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट साइड से कोई भी डेटा अभी तक नहीं आया है, केवल कंट्रोल इंफॉर्मेशन आई है, सो दैट्स व्हाई इन एक्नॉलेजमेंट फील्ड इट इज रिटन x+1। और ये किसको एक्टिव कर रहा है, फिनिश को। यहां से भी एक्नॉलेजमेंट फील्ड है, तो यानी कि ये पुराने सीक्वेंस नंबर को यूज करेगा x, और एक्नॉलेज किसको करेगा, z, दैट इज z+1, और ये एक्नॉलेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हाफ क्लोज। इज दैट क्लियर? यस क्लास, हाफ क्लोज। ओके, इसको एक बार देखना, तीनों सिनेरियो जो मैंने डिस्कस किए, कनेक्शन सेटअप, दूसरा डेटा ट्रांसफर, तीसरा आपका क्लोज। क्लोजिंग में भी दो वेरिएंट बनते हैं, फुल क्लोज और हाफ क्लोज, है ना। एक बार इनको देखना, कोई डाउट है, इशू है? सर एक चीज बताइए। सर, जो एक्नॉलेजमेंट सर इंक्रीमेंट का मतलब, उसमें तो डेटा की जरूरत नहीं पड़ती ना, एक्नॉलेजमेंट इंक्रीमेंट हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या सर? एक्नॉलेजमेंट इंक्रीमेंट होने का मतलब ये है कि मैं कौन सी बाइट नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, व्हाट बाइट नंबर द टीसीपी इज एक्सपेक्टिंग, इसका मतलब ये है। तो ये देखो x+1 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर सर्वर साइड पर, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी बाइट नंबर को एक्सपेक्ट कर रहा है, x+1 फ्रॉम द क्लाइंट साइड, और वो क्लाइंट नहीं सेंड करने वाला,
फिर देखो नेक्स्ट वाले में भी इसको कोई बाइट रिसीव नहीं हुई, डेटा नहीं रिसीव हो रहा है फिर भी फ्रॉम द क्लाइंट साइड, यहां से डेटा नहीं जा रहा है। क्यों? क्लाइंट ने तो क्लोज कर दिया। तो यहां पर भी अगेन ये किसके लिए वेट कर रहा है अभी भी? x+1 के लिए। तो यहां पर देखो ये सीक्वेंस नंबर क्या, ये वेट तो किसके लिए कर रहा है? x+1 के लिए, बट इसने सीक्वेंस नंबर क्या मेंशन किया? x, पुराना वाला। क्यों? डेटा तो सेंड कर ही नहीं सकता क्लाइंट। एक्नॉलेजमेंट में कभी भी नया सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होता, पुराना सीक्वेंस नंबर से काम चलाता है, ये ध्यान रखना। और ये एक्नॉलेज किसको कर रहा है? Z को, कि आपका जो सेगमेंट है मुझे रिसीव हो गया, नाउ आई एम वेटिंग फॉर Z+1, अगले के लिए वेट कर रहा हूं। ओके, सो दैट इज एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है? ओके सर, यस सर। एक बार बुक से पढ़ लेना, बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए इसको यहीं फिनिश करते हैं, बाकी चीजें फिर आ रही हैं। थैंक यू सो मच।